కులదైవతను ప్రార్థన చేయండి. భక్తர்கள் எல்லாருமே தாயார் अस्मत् परमेष्टि गुरुभ्यो नमः. ओम अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः. प्रणम्य शिरसा देवं नारायणमशेषगं रमा वक्षोजकस्तूरी पंकमुद्रिते वक्षसं श्रियः पतिमहं वन्दे श्रीवैकुण्ठनिकेतनं पंचरात्र प्रवक्तारम् आद्यं नारायणं गुरुं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. यस्यद्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परस्सतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये. అందరూ సంకల్ప ముద్రలో ప్రాణాయామాన్ని చేయండి. భక్తులందరూ ప్రాణాయామాన్ని చేయండి. பக்தர்கள் எல்லாருமே பிராணாயாமத்தை பண்ணுங்கோ. సంకల్ప ముద్రలో కూర్చోండి. భక్తులందరూ సంకల్ప ముద్రలో కూర్చోండి. మీ యొక్క గోత్రములు, నామధేయ నక్షత్రము, మీ కుటుంబంలోని సభ్యుల యొక్క నామధేయ నక్షత్రము మనసులో ఒకసారి సంకల్పించండి. సంకల్ప విధానం తెలిసిన వారు సంకల్పాన్ని చేయండి. సంకల్ప విధానం రానివారు అమ్మవారిని స్వామివారిని ప్రార్థన చేయండి. பக்தர்கள் எல்லாருமே சங்கல்ப முத்திரையில உக்காந்துக்கோங்க. உங்களுடைய கோத்திரம், நாமதேய நட்சத்திரம், குடும்பத்தில் எல்லாருடைய நாமதேய நட்சத்திரம் மனசுல ஒரு வாட்டி சங்கல்பத்தை பண்ணுங்கோ. சங்கல்ப விதானம் தெரிஞ்சவா சங்கல்பத்தை பண்ணுங்கோ. சங்கல்ப விதானம் தெரியாதவா தாயாரையும் பெருமாளையும் பிரார்த்தனை பண்ணுங்கோ. சர்வேஷாம் பக்தஜனானாம் क्षेमस्थैर्य विजय वीर्य अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम मनोवांछता फलसिद्ध्यर्थम राजद्वारे सर्वकार्य अनुकूलता सिद्ध्यर्थम आरोग्य दृढ़गात्र वज्र शरीराभिवृद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम श्री पद्मावती श्रीनिवास कृपाकटाक्ष सिद्ध्यर्थम कल्याण महोत्सवम आचार्य मुखेन अद्य करिष्ये सर्वं श्री वेंकटेशार्पणमस्तु. गोविंदा गोविंदा. देव्यै नमः. सरसिज नयने सरोज हस्ते धवलधरां सुगकंद माल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिपुवन भूदिहरि प्रसीद मह्यम. பக்தர்களே, ஸ்ரீ மகாலட்சுமியை துதிக்கும் ஸ்லோகம் இது. செல்வத் திருமகளாம் அந்த ஸ்ரீ மகாலட்சுமியின் அம்சமே திருச்செங்கனூர் என வழங்கப்படும் இந்த திருச்சுவரில் தனியாட்சி செலுத்தும் ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயார். அந்த தாயாருக்கு அவளது மணாளரோடு நடைபெறும் திருக்கல்யாண வைபவம் இது. பக்தர்களே, இதை தரிசித்து அந்த ஆதி தம்பதிகளின் திருவருளை பெறுவதற்கு பக்தர்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது டி.கே. லட்சுமி கிருஷ்ண சுவாமி. பக்தர்களே, அகலகில்லேன் இன்றையும் அலர்மேல் மங்கை உற பார்பா என நம்மாழ்வாரும் தத்பக்ஷஸ்தல நித்தியவாச ரசிகாம் என சுவாமி தேசிகனும் தாயாரை முன்னிட்டே எம்பெருமானை அழைக்கிறார்கள். பார்க்கடலில் ஆவிர் பவித்ததால் ஜலஜா, ஷீரஜா, ஜலதீ கன்யா என்கிற திருநாமங்களும், தங்கத்தாமரையில் வீற்றிருந்தபடி அவதாரமானதால் பத்மா, கமலா என்கிற திருநாமங்களும் நமது தாயாருக்கு இயற்கையாகவே அமைந்துள்ளன. அவளுடைய திருமுகமும் திருக்கண்களும் தாமரையைப் போல பொலிவதால் பத்மமுகி, பத்மாட்சி என்று போற்றப்படுகிறாள். அவளுடைய திருக்கரங்களிலும் திருத்தோள்களிலும் தாமரை. ஆகவே பத்மஹஸ்தா, பத்மமாலாதரா என்பதும் அவளுக்கு பொருத்தமானது. அவ்வளவு ஏன், அந்த தாயாரின் மணாளனே பத்மநாபன் அல்லவா? ஆகவே அவள் பத்மாவதி.
பக்தர்களே, அந்த தாயாருக்கு எத்தனையோ காரணப் பெயர்கள் உண்டு. ஜனக மகாராஜனுக்கு மகளானதால் ஜானகி, பூமியிலிருந்து கலப்பையின் நுனியிலிருந்து வெளிப்பட்டதால் சீத்தை என்று போற்றப்பட்டதாக ராமாயணம் சொல்கிறது. மாதுளம் கனியிலிருந்து உதித்ததால் மாதுளாங்கி, பத்ம சரோவரில் உதித்ததால் பத்மா, அக்னி குண்டத்தில் வாசம் செய்வதால் அக்னி கர்ப்பை, ரத்தின வடிவம் எடுத்ததால் ரத்னாவதி, இப்படி எத்தனையோ காரணப் பெயர்கள். நமது தாயார் இந்த பத்ம சரோவரில் திருச்சானூரில் பத்மமான அந்த தாமரையின் மீது அவதரித்தாதானே பத்மாவதி என்று போற்றப்படுகிறாள். அந்த தாயாருக்கு நடைபெறும் திருக்கல்யாண வைபவம் இது. ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திர ஆகமப்படி நடைபெறும் திருக்கல்யாணத்தில் கலச பூஜை, விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனம், பின்பு புண்ணியாக வாசன கைங்கரியம், இவை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இப்போது நடைபெற உள்ளன. பக்தர்களே, லக்ஷ்மி தேவியை வைகுண்டத்தில் ரமாதேவி என்றும், சொர்க்கத்தில் சொர்க்கலக்ஷ்மி என்றும், பாதாள லோகத்தில் நாகலக்ஷ்மி என்றும், ராஜாக்களிடம் ராஜலக்ஷ்மியாகவும் விளங்குகிறாளாம். நெல்லிமரம் இருக்கும் இடமிலெல்லாம் மகாலட்சுமி நிரந்தரமாக வாசம் செய்வாளாம். அது மட்டுமல்ல, துளசி செடியிலும் மஞ்சள் செடியிலும் அவள் வாசம் செய்வதால் துளசியோடு சேர்த்து மஞ்சள் செடியையும் நமது இல்லங்களில் வளர்ப்பது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. பூரண கும்பம், மஞ்சள், குங்குமம், திருமண், மாக்கோலம், சந்தனம், வாழை, மாவிலை, வெற்றிலை, தீபம், யானை, பசு, கண்ணாடி, நமது உள்ளங்கை ஆகிய அத்தனை மங்கள பொருட்களிலும் இந்த லக்ஷ்மி தேவி வீட்டிருக்கிறாளாம். ஆகதனால்தான் காலையில் எழுந்ததும் இவற்றை எல்லாம் தரிசிப்பது புண்ணியத்தை தரும். பக்தர்களே, அந்த தாயாருக்கு நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் திருக்கல்யாண வைபவம் இது. ஸ்ரீதேவி தாயாரின் பார்வை சென்றவிடமெல்லாம் செல்வமும் செழுமையும் வளமையும் கொழிக்குமாம். ஆகவே தனதானிய சம்ருத்தே நமகா என்று அந்த தாயார் பூஜிக்கப்படுகிறாள். யஸ்யாம் யஸ்யாம் திசிவிகரதே தேவி திருஷ்டி ஸ்வதியா தஸ்யாம் தஸ்யாம் அகமகமிகாம் தன்வதே சம்போதக்காக என்று சுவாமி தேசிகனும் தன்னுடைய ஸ்ரீஸ்துதி ஸ்லோகத்தில் தாயாரே கருணா கடாட்சத்தை பற்றி கூறியுள்ளார். सर्वगं सबोधमश्नाते पावमानेर्यो अध्येते तस्मै सरस्वती दुहे पावमाने स्वस्य यनेः संभतो रसः पावमानेऽर्तिसन्तु नः कामान् समर्थयन्तु नः पावमाने स्वस्य यनेः संभतो रसः तेन देवा पवित्रेण आत्मानं तेन सहस्रधारेण राजापत्यं पवित्रं तेन ब्रह्मविदो वयं इन्द्रस्वनीति सहमाप्नोतु राजा प्रमृणाभिः पुनातु स्वस्तिरस्तु नः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
वै सहस्रशैति सहस्रशः प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रजायति प्रजाः ताभ्यः इलान्देन इराः लोताः अवेदि अरुन्धायत् अर्घ्यं भवति प्रजा इति प्रजाः एव तदेजमानाः सजन्ते इलान्दं भवति प्रजाभ्य इति प्रजाभ्यः एव सृष्टाभ्यः इरां लोकाः अवेदि रुन्धते तस्मात् यां समां सत्रं समृद्धमिति समृद्धं क्षोधकाः तां समां प्रजा इति प्रजाः इदं हि आसाः पूर्वम् आचरत इत्याचरते यां समां निरद्धमिति विरुद्धम् अक्षोधकाः तां समां प्रजा इति प्रजाः नाहि आसाः निशं पूर्वम् आचरत इत्याचरते क्रोधमित्युक्ते क्रोधं कुर्वते यथा बन्धात् मुजानाः क्रोधमित्युक्ते क्रोधं कुर्वते एव तदेजमानाः देवबन्धानि देवबन्धानि मुजानाः क्रोधमित्युक्ते क्रोधं कुर्वते येषाम् ऊर्जम् आत्मन्निदधानाः वाणाः सततं तदिति सता तन्तुः भवति तदायुरिति सदा आयुः पुरुषः सतेन्द्रिय इति सदा इन्द्रियः आयुषि एव इन्द्रिये प्रतीति आयं धावन्ति अनभिजितस्येत्यनभिजितस्य अभिजित्या इत्यभिजित्यैः दुन्दुभेन समाघ्नन्तीति आघ्नन्ति परमा वै एषा वाक् या दुन्दुभौ परमाम् एव वाचम् अवेति रुन्धते भूमि दुन्दुभिमिति भूमि दुन्दुभिम् एति घ्नन्ति या एव इमां वाक् प्रविष्टेति प्रविष्टाः ताम् एव अवेति रुन्धते अथो इति इमाम् एव सर्वाः वाचः भवन्ति सर्वासां वाचाम् अवरुद्ध्या इत्यवरुद्धैः आर्द्रे कर्मण्ये व्यायच्छेते इति व्यायच्छेते इन्द्रियस्य अवरुद्ध्या इत्यवरुद्धैः एते अन्यः क्रोशति प्रेति अन्यः संसति यः आक्रोशति क्रोशति पुनाति एव येनाने सहायः प्रसंसति प्रसंसति भूतेषु एव अन्नाद्यमित्यन्नाद्यं दधाति ऋषिकृतमित्यधिकृतं वै एते देवगतमिति देवागतं पूर्वैः मासैः अवेति रुन्धते यते भूते छछामिति भूते तदां सामानि भवन्ति उभयस्य अवरुद्ध्या इत्यवरुद्धैः यन्ति वै एते मिथुनात् ये संवत्सरमिति संवत्सरम् उपयन्ति इत्युपयन्ति अन्तर्वेदीत्यन्तः वेदी मिथुनौ समिति भवतः तेन एव मिथुनात् नायन्ते धर्म अवेदि भिन्दन्ते वाप्मानम् एव येषाहम् अवेदि भिन्दन्ते मा अवेदि मा अतीति व्यात्सीः इति आह सम्प्रतीति सम्प्रति एव येषाम् वाप्मानम् अवेदि भिन्दन्ते उडकुम्भानित्युदकुम्भान् अधिनिधायेत्यधिनिधायदास्यामाचालीयम् परिति नृत्यन्ते इदं मधुमिति इदं मधुम् गायन्त्यः मधु वै देवानां परमम् अन्नाद्यमित्यन्नाद्यं परमम् एव अन्नाद्यमित्यन्नाद्यम् अवेति रुन्धते पदानीति घ्नन्ति महीयाम् एव येषु दधति सूर्यै स्वाहा अन्तरिक्षाय स्वाहा सम्भे स्वाहा संप्लोष्यत इति संप्लोष्यते स्वाहा संप्लवमानायेति
प्लवमानाय स्वाहा संप्लुतायेति संप्लुताय स्वाहा मेघायिष्यते स्वाहा मेघायत इति मेघायते स्वाहा मेघिताय स्वाहा मेघाय स्वाहा निहाराय स्वाहा निहाकाय इति निहाकायै स्वाहा प्रासजाय स्वाहा प्रचलाकाय इति प्राचलाकायै स्वाहा विद्योतिष्यत इति विद्योतिष्यते स्वाहा विद्योतमानायेति स्वाहा संविद्योतमानायेति संविद्योतमानाय स्वाहा स्तनयिष्यते स्वाहा स्तनयते स्वाहा उग्रं स्तनयते स्वाहा वर्षिष्यते स्वाहा वर्षते स्वाहा अभिवर्षत इत्यभिवर्षते स्वाहा परिवर्षत इति परिवर्षते स्वाहा संवर्षत इति संवर्षते स्वाहा अनुवर्षत इत्यनुवर्षते स्वाहा शीकायिष्यते स्वाहा शीकायत इति शीकायते स्वाहा शीकिताय स्वाहा प्रोषिष्यते स्वाहा पृष्णते स्वाहा परिपृष्णत इति परिपृष्णते स्वाहा उद्ग्रहीष्यत इत्युद्गृहीष्यते स्वाहा उद्गृह्णत इत्युद्गृह्णते स्वाहा उद्गृहीताय स्वाहा विप्लोष्यत इति विप्लोष्यते स्वाहा विप्लवमानायेति विप्लवमानाय स्वाहा विप्लुतायेति विप्लुताय स्वाहा आतप्स्यत इत्यातप्स्यते स्वाहा आतपत इत्यातपते स्वाहा उग्रं आतपत इत्यातपते स्वाहा ऋग्भ्य इत्येभ्यः स्वाहा यजभ्य इति यजोभ्यः स्वाहा सामभ्य इति सामाभ्यः स्वाहा अंगिरभ्य इत्यंगिरभ्यः स्वाहा वेदेभ्यः स्वाहा गाथाभ्यः स्वाहा रासकंसेभ्यः स्वाहा रैभ्यः स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा दत्तते स्वाहा अदन्तकाय स्वाहा प्राणिने स्वाहा अप्राणाय स्वाहा मुखवत इति मुखावते स्वाहा अमुखाय स्वाहा नासिकवत इति नासिकावते स्वाहा अनासिकाय स्वाहा अक्षन्वत इत्यक्षन्वते स्वाहा अनस्थिकाय स्वाहा कर्णिने स्वाहा अकर्णकाय स्वाहा शीर्षन्वत इति शीर्षन्वते स्वाहा अशीर्षकाय स्वाहा पद्वत इति पदे पदे स्वाहा अपादकाय स्वाहा प्राणत इति प्राणते स्वाहा अप्राणत इत्यप्राणते स्वाहा आवदते स्वाहा अवदते स्वाहा आवश्यते स्वाहा अवश्यते स्वाहा शृण्वते स्वाहा अशृण्वते स्वाहा मनस्विने स्वाहा अमनसे स्वाहा तेजस्विने स्वाहा अरेदस्कायेत्यरेदः काय स्वाहा प्रजाभ्य इति प्राजाभ्यः स्वाहा प्रजनराजेति प्राजनराज स्वाहा लोमवत इति लोमावते स्वाहा अलोमकाय स्वाहा त्वचे स्वाहा अत्वक्काय स्वाहा चर्मन्वत इति चर्मन्नेवते स्वाहा अचर्मकाय स्वाहा लोहितवत इति लोहितावते स्वाहा अलोहिताय स्वाहा मागंसन्वत इति मागंसन्वते स्वाहा अमागंसकाय स्वाहा स्नावभ्य इति स्नावाभ्यः स्वाहा अस्नावकाय स्वाहा अस्सन्वत इत्यस्सन्वते स्वाहा मत्स्यकाय स्वाहा मज्जन्वत इति मज्जन्वते स्वाहा अमज्जकाय स्वाहा अङ्गिने स्वाहा अरङ्गाय स्वाहा आत्मने स्वाहा अनात्मने स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा
युनक्ति सः स्वाहा युनक्तो विष्णो स्वाहा युनक्तो अस्य यज्ञस्य ऋद्भिः मह्यम् सन्नध्यायति साङ्गैः अमस्मैः कामाय आयुषे स्वाहा प्राणायेति प्राणाय स्वाहा अपानायेत्यपानाय स्वाहा व्यानायेति विअनाय स्वाहा यज्ञागतिवे वृष्टेः स्वाहा रय्यै स्वाहा राधसे स्वाहा घोषाय स्वाहा घोषाय स्वाहा आरात् घोषायेत्यारात् घोषाय स्वाहा प्रच्युत् इति प्राच्युते स्वाहाग्नये गायत्राय ध्रुवसंतराजेति राधौ तराजा आसन्दाय अष्टाकपाल इत्यष्टाकपालः इन्द्राय त्रैष्टुभाय पञ्चदशायेति पञ्चदशाय बालहृदाय ग्रीष्माय एकादशकपाल इत्येकादशकपालः विश्वेभ्यः देवेभ्यः जागतेभ्यः सप्तदशेभ्यः इति सप्तदशेभ्यः वैरोवेभ्यः वार्षिकेभ्यः द्वादशकपाल इति द्वादशकपालः वरुणाभ्यामिति मित्रावरुणाभ्याम् आनुष्टुभाभ्यामित्यानुष्टुभाभ्याम् वैराजाभ्याम् शारदाभ्याम् वयस्याम् बृहस्पतये वाङ्गाय दृढवायेति नवाय साक्वराय हैमन्तिकाय चरोः सवित्रे आदिच्छन्दसायेत्यादि छन्दसाय त्रयस्त्रिकंसायेति त्रयः त्रिकंसाय रैवताय शैशिराय द्वादशकपालकिति द्वादशकपालः आदित्यै विष्णुपत्या इति विष्णुपत्नीः तिरोः अग्नये वैश्वानराय द्वादशकपालकिति द्वादशकपालः अनुमत्या इत्यनुमत्तिः चरोः कायः एककपाल इत्येककपालः यः वै अग्नौ अग्निः प्रक्रियत इति प्राक्रियते यः च सोमः राजा तयोः एषः आदित्य यत् अग्नि सोमीय इत्यग्नि सोमीयः स एषः रुद्रः यः चीयते यत् सञ्चित इति सञ्चितेः अग्नौ एतानि हविकंसेन निर्वपेदिति निःवपेत् एषः एव रुद्रः शान्तः उपोत्थायेत्युपउत्थाय प्रजामिति प्राजां वसून् यजमानस्य अभीति मन्येत यत् सञ्चित इति सञ्चितेः अग्नौ एतानि हविकंसेन निर्वपतीति निःवपति भागधेयेनेति भागधेयेन एव एनं समयति न अस्य रुद्रः अशान्तः उपोत्सायेत्युपोत्साय प्रजामिति प्राजां वसून् अभीति मन्यते दश हविकंसे भवन्ति न वा वै पुरुषे प्राणा इति प्राणानाभिः दशमे प्राणानिति गाहनाने यजमाने ददाति अथो इति दशाक्षरेति दशाक्षराः विराडिति विराट् अन्नः विराडिति विराट् विराजेति विराजे एव अन्नाद्य इत्यन्नाद्ये प्रतीति तिष्ठति ऋतुभिः वै एषः छन्दोभिरिति छन्दाभिः स्वामैः पृष्टैः चेतव्यः इति आहूयते एतानि हविकंसे निर्वपतीति निःवपति ऋतुभिरित्ऋतुभिः एव येनं छन्दोभिरिति छन्दाभिः स्वामैः वृष्टैः चिनुतेः जिदः सुवानेन अभिजित्या इत्यभिजित्याः इति आहूयते एतानि हविकंसे निर्वपतीति निःवपति दिशाम् अभिजित्या इत्यभिजित्यैः एतया वै इन्द्रो देवाः अयाचयन् तस्मात् इन्द्रसव इति इन्द्रसवः एतया मनुष्याः ते मनसव इति मनोसवः यथा इन्द्रा देवानां यथा मनोः मनुष्याणाम् एव भवति यः एवं विद्वान् एतया इष्ट्या यजते दिग्वतिः पुरोणवाक्या इति पुनः अनुवाक्याः भवन्ति सर्वासां दिशाम् अभिजित्या इत्यभिजित्यैः या प्राणत इति प्राणतः
निमिषत इति निमिषतः महित्वेति महि एकः इति राजा जगतः बभूव यः ईशे अस्य द्विपद इति द्विपदः चतुष्पदगिति चतुःपदः कस्मै देवाय हविषा विधेम उपयामगृहीतः असि प्रजापतय इति प्रजापतये स्वाहा जुष्टं गृह्णामि तस्य देव्योः महिमा नक्षत्राणि रूपम् आदित्याः तेजः तस्मै स्वाहा महिम्ने प्रजापतय इति प्रजापतये स्वाहा திருக்கல்யாணத்தில் இப்போது கன்னியாதான நிகழ்வு நடைபெறவுள்ளது. ஆகவே அதை இப்போது நாம் தாயாரின் திருக்கல்யாணத்தில் தரிசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். திருமலை தெய்வமாம் ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் ஆகாசராஜனின் மகளான ஸ்ரீ பத்மாதி தேவியை திருக்கல்யாணம் செய்து கொள்கிறாள். தேவதைகளும் தேவர்களும் மேல்லோகத்திலிருந்து கீழே இறங்கி வருகிறார்களாம். ரிஷிகளும் முனிவுகளும் குழுவியுள்ளார்களாம். அதி ஆச்சரியமான திருக்கல்யாணம். அந்த சமயத்தில் தேவர்கள் கீழே வர சாமானியர்களான நம்மை இந்த வடவேங்கட மலைக்கு ஏறி வர வைக்கிறான் பகவான். எப்படி நம்மை தேவர்களுக்கு சமமாக உயர்த்தி விட்டார் பாருங்கள். அத்தனைக்கும் காரணம் யார்? அவரது திருமார்பில் வீட்டிற்கும் ஸ்ரீ என்கிற அந்த தாயார்தான். அந்த தாயாரை முன்னிட்டு கொண்டே பகவான் ஸ்ரீகாந்தன், ஸ்ரீதரன், ஸ்ரீநாதன், ஸ்ரீனிவாசன் என்றெல்லாம் அழைக்கப்படுகிறாராம். ஸ்ரீரங்கத்திலே ரங்கநாதரை சேவிக்க வேண்டுமானால் 7 பிராகாரங்களை தாண்ட வேண்டும். ஆனால் தாயாரை சேவிக்க வேண்டுமானால் சீக்கிரம் போய் சேவித்துவிட்டு வந்துவிடலாம். மகாலட்சுமியின் அருள் நமக்கு உடனே கிடைத்துவிடும். இதோ இந்த திருமலை திருப்பதி யாத்திரை வந்தாலும் திருவேங்கடமலை சேவிக்க, அந்த எம்பெருமானை சேவிக்க மலையேறி போக வேண்டும். அப்படியும் தரிசனம் சுலபத்தில் கிடைக்காது. ஆனால் தாயாரை கீழே திருச்சானூரில் கொலுவிருப்பதால் எளிதில் சேவிக்க முடிகிறதல்லவா? தாயாருக்கு அவ்வளவு காருண்யம் நம் மீது. ஸ்ரீ என்கிற பதத்துக்கே நம்மை நெருங்கி இருக்கிறாள் என்றுதான் பொருள். நாம் நமது குறைகளை சொல்லும் போது அதை பொறுமையாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். அதனால்தான் இவளை சிறுநோத்தி என்று சொல்கிறோம். அதே போல புருஷகாரம் என்றபடி நம்முடைய செயல்களில் குறைகளில் எத்தனை இருந்தாலும் எம்பெருமான் ஏகாந்தமாக இருக்கும்போது, அவன் சந்தோஷமாக இருக்கும்போது நமது குறைகளை எடுத்து அழகாக சொல்கிறாளாம். அப்படிப்பட்ட காருண்யம் ஏற்படும்படி செய்கிறாள். ஆகவே இவள் ஸ்ராவயத்தி. அந்த தாயாரின் திருக்கல்யாணம் இது. असि प्रजापतय इति प्रजापतये स्वाहा जुष्टं गृह्णामि तस्य ते पृथिवी महिमा ओषधयः वनस्पतयः रूपम् अग्निः ते तेजः तस्मै स्वाहा महिम्ने प्रजापतय इति प्रजापतये स्वाहा आयेति ब्रह्मण्ये ब्राह्मणः ब्रह्मवर्चसीति ब्रह्मवर्चसी जायतां येति अस्मिन् राष्ट्रे राजन्यः निशव्यः शूरः महारथगिति महारथः जायतां दोग्धे धेनः वोढा अनड्वान् आसुः सप्तिः पुरन्धिः योषा जिष्णुः इति रथे साः सभेयः युवा येति अस्य यजमानस्य वीरः जायतां निकामे निकामे इति निकामे निकामे नः पर्जन्यः वर्षतो फलिन्यः नः ओषधयः वच्यन्तः योगक्षेम इति योगक्षेमः नः कल्पतां येति अक्राने वाजी पृथिवीम् अग्निं यजौ अकृता वाजी अर्वाः येति अक्राने वाजी अन्तरिक्षं वायुं यजौ अकृता वाजी अर्वाद्यः ते वाज्यां वाजी येति अग्रग्रस्ता सूर्यं यजौ अकृता वाजी अर्वा अग्निः देहे वाजन्ने यं अन्विति
स्वस्ति महासमिति पारया वायुः ते वाजन्यं अन्विति स्वाहा येति रवे स्वस्ति महासमिति पारया वायुः ते वाजन्यं अन्विति स्वाहा येति रवे स्वस्ति महासमिति पारया आदित्याः ते वाजन्यं अन्विति स्वाहा येति रवे स्वस्ति महासमिति पारया प्राणाधृके असि प्राणमिति प्राण मे दृगमहाव्यानधृग दिव्यानाधृग असि व्यानमिति वि अनां मे दृगमहा अपानधृगित्यपानाधृग असि अपानमित्यपानां मे दृगमहा चक्षो असि चक्षुः मयि देहि श्रोत्रं असि श्रोत्रं मयि देहि आयुः असि आयुः मयि देहि बीजं वष्टाः वर्धन्यः भक्ताः सस्यां सुविप्पला इति सो विप्पलाः वोषधयः सुधिचरणेति सो अधिचरणायां सोपसदन इति सो उपसदनः अग्निः स्वाध्यक्षमिति सो अध्यक्षम् अन्तरिक्षं सुपाव इति सो पावः पवमानः सोपस्थानेति सो उपस्थानाद्यौः शिवाम् असौ तपन्ने सा पूर्वमिति यथा पूर्वम् अहोरा रात्रे इत्यः रात्रे पञ्चदशिन इति पञ्चदशिनः अर्धमासा इत्यर्थमासाः प्रगंसिनः मासाः कृताः ऋतवः शान्तः संवत्सर इति संवत्सरः आग्नेयः अष्टाकपाल इत्यष्टाकपालः सौम्यः चरुः सावित्रः अष्टाकपाल इत्यष्टाकपालः पौष्णः चरुः रौद्रः चरुः अग्नये वैश्वानराय द्वादशकपाल इति द्वादशकपालः मृगाखर इति मृगाखरे यदि न आगच्छेदित्यागच्छेत् अग्नये अगंहोमुज इत्यगंहामुजे अष्टाकपाल इत्यष्टाकपालः सौर्यं पयः वायुव्यः आज्यभाग इत्याज्य भागः अग्नये अगंहोमुज इत्यगंहामुजे अष्टाकपाल इत्यष्टाकपालः इन्द्राय अगंहोमुज इत्यगंहामुजे एकादशकपाल इत्येकादशकपालः मित्रावरुणाभ्यामिति मित्रावरुणाभ्याम् आगोमुभ्यामित्यागोमुखभ्याः वयस्या वायो सावित्र इति वायो सावित्रः आगोमुभ्यामित्यागोमुखभ्याम् चरुः अश्विभ्यामित्यश्विभ्याम् आगोमुभ्यामित्यागोमुखभ्याम् धानाः मरुद्भ्य इति मरुद्भ्यः येनो मुग्भ्य इत्येनो मुग्भ्यः द्वादशकपालगिरि द्वादशकपालः अनुमत्या इत्यनुमत्तिः चरुः अग्नये वैश्वानराय द्वादशकपाल इति द्वादशकपालः द्यावा पृथिवीभ्यामिति द्यावा पृथिवीभ्याम् अगोहोमुभ्यामित्यगोहोमुभ्याम् द्विकपाल इति द्विकपालः अग्नये समिति अनमते पृथिव्यै समिति अनमते यथा अग्निः पृथिव्या समनमदिति अनमते एवं मह्यं भद्राः नतय इति नदयः समिति नमन्तो वायवेः समिति अनमते अन्तरिक्षाय समिति अनमते यथा वायुः अन्तरिक्षेण सूर्याय समिति अनमते दिवे समिति अनमते यथा सूर्यः दिवा चन्द्रमसे समिति अनमते नक्षत्रेभ्यः समिति अनमते यथा चन्द्रमाः नक्षत्रैः वरुणाय समिति अनमते अद्भ्यैत्यदेभ्यः समिति अनमते यथा वरुणः अद्भिरित्यदेभिः साम्ने समिति अनमते ऋचे समिति अनमते यथा सामर्चा ब्रह्मणे समिति अनमते क्षत्राय समिति अनमते यथा ब्रह्मा क्षत्रेण राज्ञेः समिति अनमते विषे समिति अनमते यथा राजा विशारथाय समिति अनमते अश्वेभ्यः समिति अनमते यथा रथः अश्वैः प्रजापतय इति प्रजापतये समिति अनमते भूतेभ्यः समिति अनमते यथा
प्रजापतिरिति प्रजापतिः भूतैः समनमदिति समनमते एवं मह्यं भद्राः सन्नतय इति नतयः समिति अमन्तु पंसानः सवितः पूर्व्यासः अरेणवः विदता इति वेदताः अन्तरिक्षे देवीनः अद्य सुगेभिरिति सुगेभिः रक्षा च नः अदिति च देवा ब्रूहि नमः अग्नये विवीक्षित इति प्रतिवीक्षिते लोकस्पृतकिति लोकास्पृतेः लोकाम् अस्मै यजमानाय देहे नमः वायवे अन्तरिक्षक्षित इत्यन्तरिक्षाक्षिते लोकस्पृत इति लोकास्पृते लोकाम् अस्मै यजमानाय देहे नमः सूर्याय वीक्षित इति दिवीक्षिते लोकस्पृत इति लोकास्पृतेः लोकाम् अस्मै यजमानाय देहि यः वै अश्वस्य मेध्यस्य शिरः वेद शीर्षन्वानिति शीर्षन्वान् मेध्यः भवति उषाः वै अश्वस्य मेध्यस्य शिरः सूर्यः चक्षुः वातः प्राणैरि प्राणः चन्द्रमाः श्रोत्रं दिशः पादाः अवान्तरदिशा इत्यवान्तरा दिशाः वर्षवः होरात्रे इत्यारात्रे निमेष इति निमेषः अर्धमासा इत्यर्धमासाः मासाः पर्वाणि मासाः सन्धानानीति सन्धानानि ऋतवः अङ्गानि संवत्सर इति वत्सरा आत्मा रश्मयः केशाः नक्षत्राणि रूपं तारकाः स्थानि नभः वागुंसानि ओषधयः लोमानि वनस्पतयः पादाः अग्निः मुखं वैश्वानरः व्यात्तमिति समुद्रः उदरम् अन्तरिक्षं वायुः द्यावा पृथिवी द्यावा पृथिवी आण्डौ द्यावा सेवः सोमः रेदः यते जञ्जभ्यते तदेवीति द्योतते यते धूनतगति विधूनुते तदे स्तनयति यते मेहति तदे वर्षति वाग् एव अस्य वाग् अहः वै अश्वस्य जायमानस्य महिमा पुरस्ताद् जायते रात्रिः महिमा पश्चात् अन्विति जायते एतौ वै महिमानौ अश्वम् अभितः समिति बभूवुः अयः देवान् अवहत् अर्वा असुरान् वाजी गन्धर्वान् अश्वः मनुष्यान् समुद्रः वै अश्वस्य योनिः समुद्रः बन्धुः ज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानत् संकल्पमानं प्रकल्पमानमपकल्पमानमुपकल्प्यं गृह्णां सेयोवसीय आयत्सम्भूतं भूतं चैत्रकेतुप्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिर्भागस्तेजस्वानादपग्रस्तवन्नभिधवन् रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः
द्यावा पृथिवी इति द्यावा पृथिवी आण्डौ ग्रावा सेवः सोमः रेतः यते जञ्जभ्यते एतद्वीति ज्योतते यते विधोनुत इति विधोनुते तत् स्तनयति यत् मेहति तत् वर्षति वाग् एव अस्या वाग् वै अश्वस्य जायमानस्य महिमा पुरस्तात् जायते रात्रिः महिमा पश्चात् अन्विति जायते एतौ वै महिमानौ अश्वम् अभिजः समिति बभूवतुः अयः देवान् अवहत् अर्वा असुरान् वाजी गन्धर्वान् अश्वः मनुष्यान् समुद्रः वै अश्वस्य योनिः समुद्रः बन्धुः यो दीक्षामतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्त वै शीर्षण्याः प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणैरेव प्राणां दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथ इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा भाग्यम्बु
सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।